آئندہ ماہ اقتدار نگراں حکومت کو سونپ دیں گے۔ وزیر اعظم کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا 15 مہینے میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، بارودی سرنگیں ہٹائیں، سازشوں کی آگ بجھائی، سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی، ووٹ بینک نہیں اسٹیٹ بینک کی فکر کی۔ شہباز شریف نے کہا معاشی بحالی میں بڑی رکاوٹ سابق حکومت کا IMF معاہدہ تھا جسے انہوں نے توڑ کر ملک دیوالیہ کے کنارے پہنچایا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ اور ناپاک سازشیں مٹی میں مل گئیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، آئیں کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں۔ قوم کا فیصلہ ہے، قرض کی زندگی نامنظور۔ 15 ماہ میں آئین پامال، قانون رسوا اور اداروں کو تباہ کیا گیا۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کا خطاب جھوٹ اور فریب کا مجموعہ تھا۔ PTI کا رد عمل۔ ترجمان PTI نے کہا بے مغز گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ شہباز شریف کی سیاست روز و روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے، شبانہ روز ملک کو تباہی کی دلدل میں اتارنے میں مصروف ہے۔ کشکول کو علامت بنانے والے عیاش بھکاریوں پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ IMF سے ڈیل PTI کی تائید و حمایت کے بعد ہی میسر ہو سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، تو انہوں نے بات الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اب کھیلنا شروع کر دیا۔ انتخابات میں تاخیر کی جائے گی، معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈالا جائے گا۔ پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں سینئر صحافی حامد میر کے انکشافات۔ بتایا نگراں سیٹ اپ میں آئینی ماہرین اور صحافیوں کو شامل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن آگے نہ جائیں، کوئی سینئر آئینی ماہر آئے اور انتخابات کرائے۔ الیکشن کس قسم کے ہونے ہیں سب کو پتا ہے۔ پہلے نواز شریف کا راستہ روکا گیا، اب چیئرمین PTI کا روکا جائے گا۔ ٹریلر ابھی شروع نہیں ہوئے، بہت سے ٹریلر آنا باقی ہیں۔ نئی پارٹی لانچ ہوئی مگر اسے وہ کامیابی نہیں ملی جس کی امید تھی۔ نئی پارٹی میں لوگ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد جانا شروع ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بعد ایک اور پارٹی بھی لانچ ہونی ہے۔ چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے، ان پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں۔ ایک دو ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی بات ہے۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا ایک دو معاملات پر PTI کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، PTI کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر آن لائن شریک ہوئے۔ انتخابات کے لیے 1 ماہ رہ گیا ہے، ایسے موقع پر انتخابی اصلاحات نہیں کی جاتی۔ انتخابی اصلاحات کی گئی تو الیکشن کمیشن کیسے اس پر عمل درآمد کرے گا؟ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں اپوزیشن کے بغیر انتخابی اصلاحات متنازع ہو جائیں گی۔ انتخابی اصلاحات میں معمولی سی تجویز پر بھی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ مردم شماری کو بنیاد بنا کر انتخابات کا التوا پورے سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگست میں حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب انتخابات کا التوا نقصان دہ ہے۔ بہت سخت شرطوں پر قرضہ ملا، IMF کا پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا قرض کے لیے بہت منتیں کی، شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ دنیا سمجھتی ہے پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ثابت کرنا ہے کشکول توڑ چکے۔ جھرنو الیکشن سے چیئرمین PTI کو کاندھوں پر بٹھا کر لایا گیا، کھربوں روپے ان کے پاس تھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے چور ڈاکو کی گردان کرتے رہے۔ بڑے صنعتکاروں کو صرف 4% مارکر پر $3 ارب دے دیے۔ یہ رقم قوم کے بچوں پر خرچ ہوتی تو آج IMF کے پاس نہ جانا پڑتا۔ IMF سے قرض کی پہلی قسط مل گئی، $1 ارب 20 کروڑ اسٹیٹ بینک کو موصول۔
वजीर खजाना साकदार कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। MD IMF कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से चलना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआशी इस्तेहकाम का मौका है। GDP ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफ। IMF का हुकूमती अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट, कहा पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। IMF ने किस्तों में कर्ज देने का ऐलान किया। हुक्मरान खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर में झंडा लहरा दिया हो। कतरा कतरा देंगे ताकि मरीज मरे भी ना और जिंदा भी रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इस हुकूमत के इमाम मजहबी शख्स हैं। इन्हें और चीजों पर तो बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, लेकिन सूद के खात्मे के लिए कोई काम ना करा सके। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वाज़े होना शुरू हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है PP और नून लीग असम्बलियां तहलील करने की तारीख पर मुत्तफिक नहीं। मौलाना का गुस्सा नजर आ रहा है। एमल वली भी नाराज है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं फासले बढ़ रहे हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, PP का इल्जाम। PP ने वजीर आजम को गवर्नर KP पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला कर लिया। जियाली क़यादत जल्द मुलाकात करेगी। PP का मौक़िफ़ है कि KP में निगरां हुकूमत बेइख्तियार, अमलन गवर्नर राज नाफिज है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। मन पसंद अफसरान की तैनाती की जा रही है। मखसूस इलाकों में तरक्याती स्कीम्स और अरकान असेंबली को फंड्स जारी करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना साहब का आपको जानिब है, जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं, तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीग और PP क़यादत की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया। मौलाना फजलुर रहमान के एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया। वज़ीर मुमलिकत हाशिम नौतेज़ई कहते हैं शहबाज शरीफ को वोट न देते तो वो वज़ीर आज़म न बनते। छोटी जमातों को एतमाद में न लेना सियासी गलती होगी। हुकूमती इत्तेहादी ने इंतखाबात के इल्तवा और सियासी रहनुमाओं के मुकदमात की फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालिफत कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI और अहलिया की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। चेयरमैन PTI आज नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। नैब से पेशी के लिए मोहलत मांग ली। तहरीरी जवाब में कहा नैब चेयरमैन PTI को किसी और तारीख को तलब कर ले। 19 जुलाई को चेयरमैन PTI इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। उसी रोज नैब में भी पेश हो सकते हैं। असां 9 बजे कोर्ट में पहुतासीं। एस एच साहब असां राब्ते में असां उनखे चयो असां छोकिरी कोन वठियो वठी आवां। टाइम थी वियो आहे कोर्ट जो 11 बजे न असांने रिंग कई। चयो त छोकिरी तबियत सही न आहे, असां खणी वञी रहिया नवाब शाह अस्पताल में, तव्हां उते अचो। असां हिते जीअं पहुतासीं छोकिरी दम परवाज़ कयो। सदाम हुसैन वलद हाजी गुलाब डायरी ऐं सेफ हाउस वारनि उन्हनि मिली करे छोकिरी खे ज़हर ॾिनो आहे, टॉर्चर कयो आहे। नवाब शाह के दारुल अमान में 23 साल लड़की की पुरस्रार मौत। शब्बीरा ने 3 रोज पहले पना ली थी। तबीयत अचानक खराब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया जहां वो दम तोड़ गई। घर वाले जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई अयाज डहरी ने इल्जाम लगाया है कि आज हमारी बहन को अदालत में पेश होना था, हम वहां इंतजार कर रहे थे कि बहन की मौत की इतला मिली। सद्दाम डहरी नामी नौजवान ने 4 रोज कबल शब्बीरा का शौहर होने का दावा किया था। घर वालों का दावा था कि शब्बीरा का शौहर कोई और है। अदालत ने शब्बीरा की ख्वाहिश पर इसको दारुल अमान भेजा था।
दुबई से आए नौजवान का मावराए अदालत कत्ल, कराची पुलिस का अफसर जेरे हिरासत, डीएसपी कमर जमान से पूछगछ जारी। जराये का कहना है मंगोपीर में गैर कानूनी नाकाबंदी और फायरिंग में डीएसपी की मोबाइल इस्तेमाल हुई। राइफल के राउंड्स भी कम हैं। डीएसपी कमर एवीएलसी सेंट्रल में तैनात हैं। पुलिस हुकाम का कहना है हाशिम पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। 2 पुलिस एहलकार और एक प्राइवेट शख्स शामिल हैं। जय वक़्वा से 9mm के खौल भी मिले। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वजीर आला से हल्फ लिया। पसमानदा तरीन जिला दियामिर से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब होने पर जश्न, हामियों की नारेबाजी। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल के हुकूमती ओहदों से इस्तीफे का मामला। जराये के मुताबिक दोनों ने अभी इस्तीफे नहीं दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। दोनों को जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफी होने की हिदायत नहीं मिली। मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी, डीजीएफआई ने साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली। वसूली के नाम पर हिरासा करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। साइबर क्राइम सर्कुलर, रावलपिंडी का G8 में छापा, लोन ऐप के दफातर को सील कर दिया। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। मॉनसून बारिशों ने दिल्ली डुबो दिया। भारतीय दारुल हुकूमत में हर तरफ पानी, सड़कों पर दरिया बहने लगे। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किश्तियां चल गईं। कई इलाकों में पानी घर की छतों को छूने लगा। दरियाए यमुना में पानी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, हजारों अफराद बेघर हो गए। कहते हैं कहीं आ जा नहीं सकते हैं, जहन्नुम में रह रहे हैं। पानी में सांप भी आ गए। मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दरियाए सतलुज में कंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आबी रेले से कसूर और उकाड़ा के मुताबिक देहात ज़ेरे आब। हवेली लखा के करीब चकदरास के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो चाहते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट है इन प्लेसेस के साथ, वो हमारे बहुत अच्छे एम्बेसडर्स बन सकते हैं। जब ये यहाँ से जाएंगे एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। बुद्ध भक्षुओं का चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार के साथ मर्दान में तख्तबाई का दौरा। रमेश कुमार ने कहा बुद्धिज्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। इन मुकामात पर आने वाले पेशवाओं को खुशामदीद कहेंगे। चाहते हैं बुद्धिज्म के रहनुमा पाकिस्तान के लिए अच्छे तासुरात लेकर जाएं। तख्तबाई में तकरीबन 2000 साल पुराने आसार बुद्धमत तहजीब के अहम तरीन मुकामात में से एक हैं। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। हम इसके इलेक्ट्रिक के मसले को वो एक बड़ी अवामी तहरीक के साथ असरनो शुरू करने जा रहे हैं। पानी और बिजली का मसला भी है, स्ट्रीट क्राइम का मामला भी है, बल्दियाती इदारों पे जो कब्जा किया गया है, इस कब्जे के नतीजे में जो सिलेक्टेड मेयर और कब्जा मेयर बनाया गया है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की तहरीक हम शुरू करेंगे और हम अगस्त में एक बहुत बड़ा अवामी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जमात इस्लामी का कराची के मसाइल पर सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जरदारी साहब आपने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। शहर में पानी का बदतरीन बहरान है, लोड शेडिंग भी जारी है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हाफिज नईम पीपल्स पार्टी के बुग्ज में हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। पानी चोरी के वाकयात पर भरपूर कार्रवाइयां हो रही हैं। शहर में तामीर और तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदे को पाकिस्तान से पासपोर्ट के जरिए से जनाब इजराइल का पासपोर्ट जारी हुआ और उसको भेजा गया जनाब इजराइल। पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर पहला डेलीगेशन जो है वो इजराइल गया था। पीटीआई दौर में पहला वफ्द इसराइल गया, तमाम मामलात को हल किया गया। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर इसराइल को तस्लीम करने की तजवीज दी गई। फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के अंदर इसराइली लॉबी की हवा तेज की जा रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है
जिस तरह इसराइल पीटीआई की हिमायत में सामने आया, कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। जिन्ना हाउस का विजिट किया है और दिल को बड़ी तकलीफ हुई है। 9 मई को इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन का किरदार अदा किया है, ये कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी सहूलतकार हैं और जो मुजरम हैं, उनको कटहरे में लाने में भरपूर किरदार अदा करें। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफियों के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, शुरका का मुलव्विस अनासिर को सजा देने का मुतालबा, निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत, अवाम ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की भरपूर हिमायत कर दी। शहरियों का कहना है फौज हिफाजत करती है, इसके खिलाफ बात हो सकती है, न करनी चाहिए। शर पसंदों ने मुल्क का नुकसान किया है, इबरतनाक सजा देनी चाहिए। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। करारदाद में भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद की मजम्मत। कहा गया भारतीय हुक्काम नस्ली और मजहबी तशद्दुद रोकें और मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भारत में अदम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के नस्ली फसादात में अहम किरदार अदा किया। भारत में हिंदू अक्सरियत पसंदी को बढ़ावा देने वाली नफरत अंगेज पॉलिसियों पर तशवीश है। G7 का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की भरपूर मदद करने का ऐलान। नेटो एलामिये के मुताबिक फोर्स तवील फासले तक मार करने वाला असला यूक्रेन को तरजीही बुनियादों पर दिया जाएगा। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका और नेटो इत्तेहादी यूक्रेन को जदीद असला देने से बाज रहे। रूस यूक्रेन में F-16 तैयारों को जौहरी खतरा समझेगा। अमेरिका और नेटो मुमालिक रूस के साथ बराह रास्त मुसल्लह तसादुम का खतरा पैदा न करें। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए हम्बनटोटा से गोल पहुंच गई। पहला मैच इतवार से शुरू होगा। खिलाड़ी मैच से कबल प्रैक्टिस में खामियों को दूर करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सीरीज में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा जहां इंजर हुआ था वहीं से दोबारा टेस्ट में कमबैक करूंगा। रेड बॉल क्रिकेट में 100 विकेटें लेने से एक कदम दूर हूं। ACC इमर्जिंग एशिया कप में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। कौमी टीम कोलंबो में नेपाल के मद्दे मुकाबले आएगी। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कौमी टीम की क़यादत करेंगे। एशियन इवेंट में पाक, भारत समेत 8 मुल्कों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं।